Good morning, good evening, good afternoon, namaste. I hope everyone is doing great. Today is Thursday, 7:30 p.m. in Calgary. आज मैं अपने डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स के साथ कृति शिखा ऋषभ के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ. What is the role in this business and who can join this business? This is a very I would say बहुत ही interesting topic है, and everyone is always curious to know what our job and responsibilities look like, what our day look like. So let's get started. जैसे कि everyone knows that we are in the digital marketing business. So what is digital marketing business? Digital marketing business का मतलब है जैसे कोई भी product है, service है या कोई भी information है that we share on the social media platforms. चाहे वो बेचने के पर्पज से हो, चाहे in order to create awareness. And everyone is doing digital marketing these days. जैसे for example cleaning services, insurance services providers, या आप ले लीजिए car rental companies. Everyone is doing digital marketing these days. But what exactly we are doing? We are also following digital marketing, but we are following a very unique style of marketing in the digital marketing, जिसकी वजह से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए. इफ यू टॉक अबाउट द मार्केटिंग प्रोसेस, जैसे कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस की अगर आप बात करते हो जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड देन we understand which is our target audience, and then we comes to building relationships and making connections, and then finally we deliver the product to the right customer. But coming back to our business, when we are doing digital marketing, we are not focusing on any product or service. Though the product is involved, that's why the things make a little bit different what other people are doing these days. हमारा focus mainly जो हमारी jobs और responsibilities है, that's we are focusing mainly on the just first part of the marketing process, जहाँ पे हमारा focus है that we are creating and sharing the valuable content to social media platforms only. जैसे what are the features and benefits of being in this business. We share our interests, thoughts, our success stories. And you can also scroll our Facebook page to get a better understanding what exactly we're doing on the daily basis. And plus, we have an automation system in place, which is doing almost 70 to 80% of our work, which is reaching out to the wider audience on our behalf. For example, if I'm sitting in the office and I just create some posts, I share some information through social media platform. The system is the one who is reaching out to the wider audience, and the audience is, if is interested in learning more about the business, they are connecting with us in a very natural way, which makes the things really easy. जिसकी वजह से हमें I don't have to think about or be stressful. ठीक है, I have to go back, come back from the office now. I have to make calls, make relationship. मेरे को किसी को chase करना नहीं. So that part is totally eliminated and has been done by the sales automation system. जिसकी वजह से ये business कोई भी बहुत आसानी से कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट दे हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉर्गेजेस, एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, देन फाइनली दे डिलीवर द मॉर्गेज सर्विस टू द क्लाइंट. बट इफ यू कम टॉक अबाउट आवर बिजनेस इज समथिंग a very unique. We're just focusing on creating awareness, helping people. That's what our major responsibility look like in a day. And plus, of course, of course, we have a mentorship also, that we also play the role of the mentor, and of course as a coach as well. Uh, Yeah, just that's true. That's what I'm going to mention about it. कि जो yeah, mentorship and coaching है, that's a very beautiful part of this business. Of course, training is already there in the business, but जो mentorship provide की जाती है, and especially when you join the business, or I can say that when you decide to join this business, personal mentor and coach are assigned to you, and that helps you like. अगर हम मेंटर्स की बात करें तो मेंटर हेल्प यू इन योर डे टू डे ऑपरेशंस की फॉर बिगिनर्स की कैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करने, कैसे क्रिएट करने, हाउ टू बिल्ड क्रिएट योर आइडेंटिटी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स, फिर आपको कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, दैट्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मेंटर, जिसके लिए आपको वन ऑन वन सेशंस भी मिल जाते हैं ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग.
और Yes. कोचेस भी होते हैं, एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट द कोचेस, दे हेल्प यू इन योर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, कि जहाँ पे कभी आपको बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करना है, एक्सपेंशंस करने हैं बिजनेस में, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, so they help you, they guide you, in this transitions, in taking those difficult decisions in your business. So it's very amazing part, and that's why we claim that anybody can join this business, Yeah. Definitely. because And also, the only things that you need to make sure that you should be over and above 18 years of age. You should be coachable enough to learn the training and the system. And the third one, and the very very important, is that you should have working rights in that particular country, meaning कि अगर आप जिस कंट्री से इस बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, वहां पे उस कंट्री के आपके पास वर्किंग राइट्स होने चाहिए. आप वहाँ पे टैक्स फाइल करते हो, दैट इज इक्वली दैट यू हैव वर्किंग राइट्स. बट समटाइम्स वी ऑल्सो हैव अ क्वेरी कि कभी हमारे सामने ऐसे भी केसेस आते हैं कि जहाँ पे जो स्पाउसेस होते हैं वो डिपेंडेंट वीजा पे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मूव होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, एंड देन दे आस्क अस टू जॉइन दिस बिजनेस. So they definitely can join this business, but for that they can't do this business on the dependent visa. But in that case the option available for them is कि वो जिस कंट्री से मूव हुए वहां पे डेफिनेटली वो टैक्स भी पे करते होंगे, वहां पे उसके पास वर्किंग राइट्स होंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ से इंडिया से कोई यूएस मूव हो रहा है अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ डिपेंडेंट वीजा पे, तो वहां पे डेफिनेटली वो यूएस में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते. बट दे कैन डू दिस बिजनेस while staying in US. The only thing that they have to register that business from India, because India में उनके पास working rights है. So this डेफिनेटली. is और the साथ only thing that they need to make sure. Otherwise, this business doesn't require any ओके. सो हाँ, एक्चुअली आई थिंक सो, हाँ, कनेक्शन प्रॉब्लम. connection people issues. from या all walks yeah. of. We have people from all, from different qualifications, from different professional backgrounds. We have people from hospitality industry, chartered accountants, dentists, Yeah. nurses, teachers, retirees. And top of everything, we have stay home moms as well in this business, and they are doing this business very successfully. I think Shikha can tell you more about this thing. फॉर श्योर. सो यस, मैंने भी ये बिजनेस, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज अ हाउसवाइफ टू. एंड मेरा जो प्रॉब्लम था मेन, एज एन इमिग्रेंट जब हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटीज होती है वो किड्स होते हैं, राइट. सो इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे जॉब्स नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई किड्स. तो एंड आई डिसाइडेड कि जब मैंने इस बिजनेस के बारे में देखा, और जिसमें सबसे ज़्यादा यही मेंशन किया था, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ग्लोबल बिजनेस है, और आप इस और अपनी लैंग्वेज में हम लोग इसको कर सकते हैं. एंड एज Yes. कृति और रंजना ने जैसे मेंशन किया कि इसके अंदर मेंटोरशिप कोचेज अवेलेबल हैं, तो वो सच्चा मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ था. मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो मैं, लाइक दिस वन, ये एक वो चीज़ है जो मैं एक्चुअली में ढूंढ रही थी. तो और मैं इसको अब 3.5 साल से मैं ये बिजनेस कर भी रही हूँ, और फैमिली के साथ रहकर ये बच्चों को टेक केयर करते हुए ये बिजनेस कर रही हूँ. सो डेफिनेटली दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन. बट एक चीज का डिफरेंस है कि अगर हाउसवाइफ हो, आईटी के हो, फाइनेंस के हो, लाइक आप कोई भी प्रोफेशन से हो, आपके पास एक चीज हम सबके पास कॉमन होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए कुछ चीज को अचीव करने के लिए. सो डजेंट Yes. मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो. इफ यू हैव दैट पैशन टू अचीव योर गोल्स और ड्रीम्स, यू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग. एंड मैं एक चीज यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि कृति जी ने मेंशन जैसे किया कि आपको किसी भी, ये डेफिनेटली आप बिजनेस, आप ये ग्लोबल है तो आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपके पास लीगल वर्किंग राइट्स होने चाहिए. सो जैसे कोई लाइक डिपेंडेंट वीजा पे आया है अपने स्पाउस के, तो आप इस बिजनेस को अपने स्पाउस के नेम पर भी कर सकते हो. एंड लेटर ऑन जब आपकी लाइक परमानेंट रेजिडेंट हो जाओ, या लाइक आपके पास वो वर्किंग राइट्स आ जाए, तो आप ये बिजनेस अपने नेम पे ट्रांसफर भी करवा सकते हो. तो Yeah, इट्स या सो, ताकि आप यहाँ पे जिस कंट्री में भी आप रह रहे हो, तो आप लीगली उसको रजिस्टर करवाओ, और एंड यू कैन फाइल दैट टैक्स. सो डेफिनेटली दिस बिजनेस इज फॉर एवरीवन. एवरीवन मीन्स एवरीवन. या Absolutely.
Thank you, Shikhaji. Hello, everyone. My name is Rishabh. I'm from Kitchener, Ontario. Namaste. Good morning to everybody. So, this is on our topic that you can join this business. So, according to me, there is only one legal formality that you should be above 18 years of age, as Kriti ji mentioned. And I think anyone can start this business who has the passion of learning to do this. And there is no prior experience needed. जस्ट सिर्फ आपको आप चाहे भी सीजन प्रोफेशनल हो यहाँ के एक कंप्लीट न्यूबी हो किसी भी कंट्री में you can do this business if you are willing to learn and you can succeed in this digital business. With our comprehensive training and support and the mentorship support, you are not alone in this journey. Everybody is together in this journey and everybody has started from the same scratch. पोस्ट दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी कनाडा में 1 साल पहले एज इमिग्रेंट आया था. तो मुझे जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यहाँ पे आने से कि सब कुछ हमें एक नए स्टार्ट से शुरू करना है फ्रॉम द स्क्रैच. वी हैव टू स्टार्ट. सबसे पहले जैसे कि एक कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर तो ज़रूर हमें आता ही आता है while talking with anybody, while finding a new job, while doing anything for your home and everything. और सेकंड थिंग इज कि आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस की यहाँ पे रिकग्निशन नहीं होती है. So based on that, were unable to find out you are unable to find out a good job or in your respective field, जो actually मैंने face किया है. एंड पिछले 1 साल से मुझे काम नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि फेस करने लगे कि यार कुछ काम भी नहीं है, क्या करे आदमी. ठीक है. So then I dig into this online space and find out new opportunities for myself and my family to support my family financially. So as a male, we guys are very skeptical. Ki whatever we see online, probably this could be a scam. Yeah. Yeah. So frankly, मैंने बहुत सारी opportunities explore की और मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता रहता था. बट अबाउट दिस बिजनेस, yes, definitely this is a legit business. This is 100% taxable, tried and tested. And what should I say is with while doing this business is that we should get the flexible work schedule and financial independence. And personally मुझे काफ़ी growth मिली है इस business में personally in terms of learning new things every day and day. And definitely you can make good networking with your mentors and with your team members who are actually working together in different respective fields. आपको कुछ ना कुछ नया in terms of country आपको कुछ ना कुछ पता चलता रहता है. That will actually help you in a better way. And for male people, I would say that guys, this digital business is actually a game changer for me. It allows you to actually to balance your work, whatever you're doing, either you are in professional service or in your business, with the personal commitments, and you can achieve the financial independence. Imagine having the flexibility to your work on your own terms, and you can actually pursue your passions. And आप साथ में अच्छी एक income भी बना सकते हैं अपनी family के लिए for the long thing. I think this is your chance to take control of your future, and you can actually grow personally and professionally. At the end, I would definitely say that you can explore the endless opportunities with this digital business, and this will actually transform your life. It will actually transform my life, and I hope for everybody who is in this business. That's it. Thank you. Rightly said, Rishabh. I can imagine because when I was an immigrant, when I came here to Canada 9 years ago, it was also very challenging for me also to get a job in my field. Of course, then you have to do a lot of networking. You need a great referral in place because everyone is rejecting you because you're lacking Canadian experience. And Canadian I think experience, exactly. it's very tough, especially for the immigrants. And most of the time, people end up taking very odd jobs, right? Right. So I think it's a very great business. Even if you're looking for a job side by side, you can start Yep. your business, and it's a life changer for everyone. And also, retirees can also do this business really well. जैसे because जैसे कि हम सब जानते हैं, because it's very easy to manage this business. We have to spend almost, I would say, just 1 to 2 hours on the daily basis. क्योंकि जब भी हम एक रिटायरमेंट की भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक एज फैक्टर आता है कि Right. 60+ years, right?
the people who are actually approaching retirement, or yeah, who has also already taken the retirement, और या आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दे डोंट हैव एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इन प्लेस नहीं है, राइट? because now they are relying on pensions and savings, right, Right. just to live their life in a comfortable way. बट और बहुत सारे ऐसे भी रीजन है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, और दे हैव एग्जॉस्टेड, दे हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, और इधर दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग, राइट? तो मुझे आई स्ट्रांगली फील कि ये रिटायरीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यू आर स्टिल प्रोडक्टिव इन योर रिटायरमेंट. क्योंकि क्या होता है कि the moment you have taken the retirement, right, you feel really great in initial few months because you feel that freedom in place, that everything is looking good. But at one point of time, you start feeling there should be something. There should be a sense of purpose every day. Some Yes. that you stay productive. और ये भी बहुत जरूरी है, especially at this age, because there are a lot of changes are going through. You get engaged and be productive at the same time. It's very great for your mental well-being also for the retirees. And I also feel with the rising cost of inflation, sometimes your pension and your savings are not enough to cover up your Right. living cost, which is really important, I think, to supplement your income in that way. So I strongly feel that it's a very great option for retirees also, and very easy to manage. Even if you have little bit health issues, of course, exceptions are always there, but it's really very easy to manage because they just have to spend like 1 or 2 hours on the daily basis, and they can also pursue their passions and hobbies along with that. Even if they're traveling, they can still do this business from anywhere across the world. And और हमारी कम्युनिटी में कितने सारे लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, and I was listening to someone, he said, I wish I would have joined this business while I was doing my job, तो अभी तक मेरा बिजनेस सेट हो चुका होता. So right, so it's a very great opportunity, and I must say that you should consider this opportunity. Definitely, I want to add here one thing today because we are in UK right now, right? So मेरे हस्बैंड का जॉब है और वो अभी हम लोग 1 मंथ का वो ऑफ लेकर आया है, एंड टुडे इज सेकंड और थर्ड डे एंड ही इज बोर्ड एंड ही टोल्ड मी दैट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू. सो आई फील लाइक सब रिटायर, जब लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उनके पास लाइक ऑब्वियसली वो उनको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें वो अपना एटलीस्ट 2-3 आवर्स स्पेंड कर सके. इट कॉल लाइक आप कह सकते हो मी टाइम भी, क्योंकि चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, हम सबको अपना एक सेल्फ टाइम चाहिए ही चाहिए कि हर एज में. सो मेरे दैट टाइम लाइक मुझे भी जस्ट रंजना ने ये बात बोली ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरे हस्बैंड सुबह से मुझे यही बोल रहे हैं कि आई फील बोर्ड, व्हाट शुड आई डू. अभी मैं जॉब पर होता तो मैं ये कर रहा होता, बट अब मुझे 1 मंथ में मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो गया हूँ. सो like it's very necessary if we have a plan B, so ताकि और आप इन फ्यूचर ये चीज अपने बच्चों को आप दे सकते हो एज अ लेगेसी, और आप अपने हस्बैंड को भी if your spouse wants to join, he can join that too with you. और वैसे भी और एक चीज और भी है, जैसे शिखा, जैसे स्पेशली इन कनाडा ड्यूरिंग विंटर्स, it's really hard for the especially retirees, right, because they are stuck in the house because now they're not going to the job anymore. तो कहीं ना कहीं they start feeling depressed, their mood swings are changing, right? Yeah. And they are not able to make that connection. So this is a very great way also, sitting at home, making connections, talking to a Ranjan, lot it's of not people. only like old people, like Yeah, I'm talking yeah. about the same with my husband, like वो 2 बार सुबह से सो चुके हैं, तो अब कितना सोए, जब इंसान के पास काम ही नहीं कोई करे तो बॉडी भी टायर्ड नहीं है. 2 बार सो चुके हैं, अभी भी जाके कहते हैं कि मैं सो ही जाता हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है. तो इट्स वेरी हार्ड. तो सोचो जब Yes, हम लाइक absolutely. 60-65 की एज में, तो बॉडी ऑब्वियसली नींद भी कम होती है, ठीक है, खाना भी कम होता है ना, Yeah, एनर्जी भी नहीं होती, तो हमें absolutely. कुछ एक ऐसा चाहिए जो हम लोग प्रोडक्टिवली घर बैठ के कर सकें. एंड स्पेशली बिल्कुल. व्हेन दे हैव एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ना, तो वो उनके लिए भी वो रिटायरमेंट वो एंजॉय कर सकते हैं. अपने जो गोल्डन ईयर्स है दे कैन डेफिनेटली एंजॉय, बिकॉज पेंशंस
एंड आई वुड से कि जो सेविंग्स होती है दे आर जस्ट इनफ टू सर्वाइव. Right. वो Yes, इसमें से yes, yes, इतना yes. इतना और कुछ प्लान नहीं कर सकते, बट इफ दे कैन क्रिएट और इफ दे कैन रिलाई ऑन सच काइंड ऑफ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, देन इट वुड बी वेरी, वो फिर True. एक पूरी लाइफ का मजा ही अलग हो जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि दे आर रनिंग आउट ऑफ पेंशंस एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर बैंक बैलेंसेस. तो एक अलग सा एक मेंटल पीस भी रहता है, क्योंकि फाइनेंस, ऑफ कोर्स मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज ऑलमोस्ट so much thing. So much thing, Yes, yeah, हाँ. not everything but so And much. here I would also like to mention about the work life balance as well, क्योंकि जो कॉर्पोरेट लाइफ में काफी सालों से रह चुके हैं, लाइक जो मिड लाइफ तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 10-15 साल दे दिए हैं कॉर्पोरेट्स में, उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है. जब आपने ज्वाइन किया था, व्हेन यू वर न्यू इन द मार्केट, जब आपने नई नई डिग्रीज ली, और अब जब जॉब में जाते हो, देन यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपका एक अलग गोल रहता है कि डाउन द लाइन यू वांट टू सी योरसेल्फ इन मिडल मैनेजमेंट पोजीशंस और समथिंग. बट जब आप मदर बनते हो, जब आप मैरिज हो जाता है, देन यू हैव टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तब आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हो. जैसे फॉर मी कि 12-13 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, ठीक है, बट everything was managed smoothly when I was in India, when I was supported by my extended family, जहाँ डोमेस्टिक हेल्प भी मिल जाती थी. बट जब हम यहाँ आए, देन आई रियलाइज कि ये जॉब करना कितना मुश्किल होता है. एवरी डे घर से बाहर जाना, कम्यूट करना, स्पेशली जब वेदर चैलेंजिंग हो, जब घर पे बच्चे बीमार हो, जब तब ऐसा लग रहा है कि किस किस चीजों को कहाँ से कौन से एरिया को कवर किया जाए. जब एक चीज को मैनेज करे तो दूसरी चीज छूटी जा रही है. एंड एट दैट टाइम समटाइम्स इट मे हैपन दैट यू आर इन दैट परफॉर्मिंग स्टेज इन योर करियर एज वेल, कि जहाँ पे आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है, आपको ग्रोथ भी करनी पड़ती है, बेटर करियर प्रोग्रेशन के लिए आप कहीं स्विच भी करते हो जॉब्स. तो हो जाता है कि घर को आप कहीं ना कहीं मिस करते हो, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते. जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कई बार ऐसा होता था कि ऑफ कोर्स मेरे बच्चे डे केयर की एज के नहीं थे, बट इट डजंट मीन कि पेरेंटिंग स्टॉप्स देयर. पेरेंटिंग तो Yes. लाइफ टाइम प्रोसेस रहता है. दे नीड अस, नॉट समटाइम्स फिजिकली बट इमोशनल सपोर्ट उनका हमें उनको देना ही देना पड़ता है. बट हम अपनी जॉब लाइफ में और कॉर्पोरेट लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वो चीज़ इग्नोर करने लगते हैं, और हमें बस यही लग रहा है कि चलो हमने खाना दे दिया, बच्चों को ये कर दिया, स्कूल भेज दिया, देन दैट्स डन. Yeah. बट सही में ऐसा नहीं होता है. जैसे मैंने जब जॉब में मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़े ही टाइम में ये रियलाइज किया कि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में ना एक वैक्यूम, एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सी मी कि मम्मी बहुत बिजी है, देन दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन देयर ओन. दे स्टॉप शेयरिंग देयर थॉट्स, दे स्टॉप शेयरिंग कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सारा कुछ उन्होंने डिस्क्लोज करना बंद कर दिया, अज्यूमिंग कि मम्मी के पास टाइम नहीं है. ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम नहीं था, एंड दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड चेंज समवेयर समथिंग इन माय लाइफ. एंड तब मैंने भी इस बिजनेस के लिए ऑप्ट आउट किया. मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि कुछ घर पे बैठ के काम किया जाए, सो दैट हम फैमिली को भी टेक केयर करें. क्योंकि इस टाइम जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ये एक ऐसा टाइम फेज था मेरे लिए कि जहाँ पे मुझे अपने पेरेंट्स को भी बैक होम में सपोर्ट करना था. वो भी रिटायर हो चुके होते हैं, तो समटाइम्स उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत होती है, समटाइम्स दे नीड आवर फिजिकल प्रेजेंस. उनको भी एक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है. दूसरी तरफ बच्चे अपने ग्रोइंग फेज में होते हैं, उनको भी हमें टेक केयर करना होता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है. तो सब कुछ जॉब के साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और एक पॉइंट तो ऐसा था कि आई वाज थिंकिंग कि आई कैन टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन और आई कैन एक्सेल इन माय करियर. दो एक साथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब ये बिजनेस मिला मुझे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हम ऐसे भी काम कर सकते हैं बच्चों के साथ घर में रहते हुए, बच्चों को फैमिली को देखते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं. और अर्निंग Definitely. पोटेंशियल डेफिनेटली मैटर करता है इस एज में, क्योंकि मिड लाइफ एक ऐसा फेज होता है कि आप जैसे आगे फ्यूचर प्लानिंग भी हमें करनी होती है, हमें अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है, बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन को प्लान करना होता है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी होना बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज को देख लो, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो और फिर बच्चे जैसे ग्रो हो रहे हैं, उनकी भी ग्रोइंग, बच्चों की उनकी खुद की नीड्स होती है. तो इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए यू शुड हैव प्लान बी, यू शुड हैव सप्लीमेंट योर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम. आप उनको भी ऐसे सपोर्ट करने के लिए. सो आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू डील विथ मिड लाइफ क्राइसिस, टू डील विथ
the work-life balance. And in the end, I would say that जो भी अभी वर्किंग पेरेंट्स है, जो अपने न चाहते हुए भी बच्चों को डे केयर में छोड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव शिफ्ट्स में काम करते हैं, जो रिटायरीज है, जो अपने पेंशन के अलावा भी कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं, बट समटाइम्स उनकी हेल्थ उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, समटाइम्स वो वेदर ऐसा है या कुछ भी और कंडीशंस होती है, मे बी स्पाउस की वजह से वो उनको भी छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकते. सो आई वुड से कि इनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. आपको श्रुति, मैं कुछ यहाँ add- पर एक चीज और भी ये वाली भी ऐड भी करूंगी, क्योंकि जैसे अभी आप मेंशन कर रहे हो ना कि जैसे किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर हम जैसे जॉब्स कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आई है या हमें 6 मंथ्स के लिए इंडिया जाना पड़े या कहीं पर भी, तो yes, हमें उस टाइम पे ऑब्वियसली वो हमें पेड हॉलीडेज नहीं देंगे. हमारे को yes, 6 मंथ्स के अगर जाना है तो हम लोगों को वहां से लीव ही करना पड़ेगा, राइट, yes, परमानेंट. तो देन विल कम बैक एंड फाइंड अनदर जॉब. बट इन दिस बिजनेस कुछ ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है तो आप इस बिजनेस को वहीं से पॉज करके 6 महीने साल बाद आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो. आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना. तो yes, इसमें ये भी बहुत एक दैट्स वाई जैसे Exactly. रंजना ने मेंशन किया दिस बिजनेस इज यूनिक. वो वाकई में ही यूनिक है बिकॉज इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ की जो जितनी भी जॉब्स में या ऑफलाइन बिजनेसेस में जो हम फेस करते हैं ना, दैट्स कवर एवरीथिंग. yes, दिस बिजनेस एवरीथिंग. बिकॉज जैसे ऑफ कोर्स जैसे मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, जैसे कृति जी ने बताया, जैसे मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, तो आई एम फेसिंग दोज चैलेंजेस, राइट. yes, दैट्स द रीजन आई एम बिल्डिंग दिस एज अ प्लान बी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि लाइफ इतनी अनएक्सपेक्टेड है. बिकॉज यू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंपनी. परफॉर्मेंस में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता वहां पे, एंड यू हाँ, एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर फैमिली ओनली, एंड यू स्टार्ट आस्किंग देम टू डू द थिंग्स ऑन देयर ओन. तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, एंड somehow start creating a mental pressure and your health issues. Right. तो आई थिंक बहुत जरूरी है, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि लाइफ इज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. एंड सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव अ प्लान बी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. तो एक पीस ऑफ माइंड भी है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप फील करते हो, यू परफॉर्म रियली वेल देन. Okay, you have something in place for yourself. If something happens, we don't have to worry yes, about something. yeah, So this definitely. is a very good option in that case, I would Yes, say. you should have something, to fall back on in Yeah, adverse situations at least. Yeah. So एंड exactly. स्लोली स्लोली जो चीजें कई बार मुझे लगता है फिर अगर ऐसी ऑप्शन हमारे पास होती है ना, तो कुछ चीजें जो टफ भी होती है ना हमें लाइफ में, वो स्लोली स्लोली हम्म, अपने आप इजी लगने लगती है बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास ऐसा कुछ सोर्स ऑफ इनकम है जो हम कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं, तो वो अपने आप ही एग्जैक्टली, इजी होने लग जाता है. बिल्कुल definitely, बिल्कुल. definitely. Yes. Financial backup तो आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है जब बहुत हम, जरूरी है. yeah. Exactly, And because the money, especially when we are living in these countries, these third world countries, it's very essential for us to have. एवरीवेयर. या Yeah. या of course, you feel powerful somehow, right? If you have a great backup plan in place, right? And then you, or एक mental stress भी नहीं रहता, and you are able to do things really well in your life. और Right. ऐसा नहीं है, आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ लोग मल्टीपल जॉब्स भी करते हैं, शॉर्ट जॉब्स Yeah, करते हैं, yeah. पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, बट वो सारी जॉब्स का मैंने भी ये सोचा था, बट उनके ये ड्रॉबैक्स होते हैं कि आपको यू हैव टू फिजिकली प्रेजेंट, आपको कम्यूट Yeah. करना पड़ता है डेली, यू हैव टू डिवोट सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स टू गेट पेड. बट यहाँ पे आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अगर आज आपके पास दिन में ज्यादा काम है, आप इसको आधा घंटा दे सकते हो, आपके पास वीकेंड में थोड़ा स्पेयर टाइम बच जाता है, यू कैन डिवोट सम मोर टाइम More ऑन योर time. बिजनेस. तो आप Yeah. अकॉर्डिंगली उस बिजनेस को टाइम दे सकते हो जिस तरह से, while keeping in other things in priority. आप दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हो. That's the amazing thing in this business, I would say. Yeah, यस exactly. डेफिनेटली. Anything wants to add something? I I, think so. We covered everything. yeah, Yes. yeah, Yeah, we we have covered covered everything. everything. Yeah, So so yeah, it's that's all very about good. from all of us. And again, I would say कि अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, and if you resonate with any of us, then do check out this opportunity. It's worth giving a try. और कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो, and we are always here. We are just a message away from you to answer all your queries, all your concerns. सो और आगे भी हम नए नए चीज़ों को लेकर आएंगे, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस के क्या चैलेंजेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है फर्दर, अब हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, सक्सेस स्टोरीज भी हम लेकर आएंगे. सो कीप वॉचिंग अस फॉर अपकमिंग सीरीज, एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much, Thank you everyone. so much, everybody. Thank Have a you. good one. Thanks. Bye bye. Bye. बाय. Bye bye.